ओके फाइन, चलिए अभी हम शुरू कर रहे हैं. A very good morning to all. And now let us see, in this semester we'll be dealing with the subject Transfer of Property Act. And this act is for what and why we are studying it. Are you aware of that we have a number of ways by which we can get our property transferred, like for example gift, sale, mortgage, lease, exchange, will. These are the ways by which we can transfer a property from one living person to another living person. Now if this is the thing, what is the need of having a Transfer of Property Act? This is again an important question. So I would like to tell you that before the any of these statute which came into existence specifically for India, it was during the British period, because the Britishers were ruling India. They found that Hindus were having a different mode of getting their property transferred. Sometimes there were the laws which were prevailing which says that a Hindu can only transfer a property to Hindu, a Muslim can only transfer a property to Muslim. Suppose if a Hindu wanted to transfer his property to Muslim, then in that case, what would be the procedure which need to be followed? These were the questions, because when we dealt with the Muslim law, or some of you might be knowing that Muslim law में there is a provision relating to shufa, जिसमें कि right of easement के virtue से property can be claimed by the other party. If we take into these consideration, one idea or one thing comes into our mind. That thing is, in India, before the enactment of this particular act, what were the provisions? Like personal laws के द्वारा ही basically देखा जाए तो govern होता था. प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती थी बाय वर्चू ऑफ अवर पर्सनल लॉज. अब आपने हिंदू लॉ में भी देखा है और साथ ही साथ आपने मुस्लिम लॉ में भी देखा है कि हम बाय वे ऑफ विल भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, हम गिफ्ट भी देते हैं और विल के द्वारा भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाते हैं. देन इन दैट केस, ऐसे में क्योंकि हमारे इंडिया में इतना डाइवर्जन एंड इतना वैरायटी ऑफ रिलीजन होने की वजह से, एंड एवरीवन नीड टू रिस्पेक्ट देयर पर्सनल लॉ, उस वजह से एक ही तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर पाना वेर वेरी डिफिकल्ट. So different religion were having a different mode for getting their property transferred to one another. अब ब्रिटिशर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट कि भाई हिंदू के लिए अलग प्रोसीजर है, मुस्लिम के लिए अलग प्रोसीजर है, क्रिश्चियंस आर हैविंग अ डिफरेंट प्रोसीजर, पारसीज आर हैविंग अ डिफरेंट प्रोसीजर. नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू एडमिनिस्टर दीज पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस which are in relation to the property. So, uniform law was thought to be enacted, and this particular act, which is called as the Transfer of Property Act, this came into effect on 17th of February, right, 1882. Now, Transfer of Property Act is a short title of this particular act, and the long title of this particular act is, this is an act, Transfer of Property Act 1882, and it is an act to amend the law relating to the transfer of property by the act of parties. Now it is an act to amend the law relating to transfer of property by the act of parties means what? It means whatever the transfers which are taking place through the act of parties, already the law exists there. दैट इज टू से, हमने अभी आपको पहले बताया कि पर्सनल लॉ के द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती थी. मीन्स कि एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता है, उसी में हम कुछ अमेंडमेंट लेके आएंगे, और ये अमेंडमेंट जिस लॉ के द्वारा लेके आएंगे वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहलाया जाएगा. ठीक है. So it is nothing but an act which is there, or which is brought, or which is enacted to amend the law relating to the transfer of property by the act of parties. अब इससे दो बातें क्लियर होती है. One important thing is कि the particular act, Transfer of Property Act, only deals with the
transfers which come into existence by the act of parties and not by the virtue of testamentary. अब आपका जो इंटर वाइवस है या आप ऐसा बोलेंगे टेस्टामेंट जो विल के द्वारा या इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी आती है उसके रिलेशन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डजंट make any of the provision nor it is applied. So transfer of property is only applied wherein the property is transferred by the act of the parties. Now come to next. As we have seen the background, what is the background behind the Transfer of Property Act? So prior to 1882, the transfers of immovable property in India was governed by the principles of justice, equity and good conscience. कहने का मतलब है कि इंग्लिश लॉ होता था, इंग्लिश लॉ के वक्त में प्रिंसिपल्स क्या थे? जस्टिस, इक्विटी. बट जस्टिस और इक्विटी भी ये इतने बड़े और इतने एम्पल नोशन के हैं कि दिस गेट vary from circumstance to circumstance and situation to situation. अगर हमारे पास में कोई स्टेट्यूटरी प्रोविजन है तो उसके हिसाब से हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो डील करेंगे. बट यदि हमारे पास में कोई स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं है देन इन दैट केस क्या है? जो इंग्लिश लॉ है और इंग्लिश लॉ जो है उसमें स्टेट्यूटरी प्रोविजन है तो इट्स ओके, बट उसमें स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं है. अब बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इंडिया को रूल किया, इंडिया को रूल करते वक्त उन्होंने पाया कि यहाँ पे पर्सनल लॉज हैं और ये पर्सनल लॉज जो हैं ये अनकॉडिफाइड हैं. तो कहने का मतलब है इनके पास में स्टेट्यूटरी प्रोविजंस नहीं है. इंडियंस डू नॉट हैव अ स्टेट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन इन दैट केस उन्होंने क्या किया? यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी अप्लाई किया. अब प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी में क्या हो गया? उनके अपने खुद के ओन नोशंस जस्टिस को लेके या फेयर प्ले को लेके वो अप्लाई करने लगे. और बेसिकली ये नोशन ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले क्या होगा ये डिपेंड होने लग गया किस चीज़ के ऊपर? पर्टिकुलर सिचुएशंस एंड पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, केसेस के ऊपर. नाउ इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा जैसा पाया गया कि भाई देयर इज अ नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देयर और देयर इज अ नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म लॉ व्हिच वुड गवर्न बेसिकली the transfer of immovable property among the individuals. ऐसे वक्त में an appointment of law commission was made. When an appointment was law commission was made, उन्होंने भी खूब सारे effort किए and it was the third law commission which after number of revision, more than 7 times a revision they did, and after that revisions this transfer of property act 1882 came into existence. Now when this act came into existence तो उसमें भी कुछ खामियां थी. अब बिकॉज हमने जैसा बताया कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये अमेंड करने के लिए है बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट होने वाले प्रोविजंस जो कि करते हैं बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ में. तो ये जो एक्ट है अपने आप में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट में कि इट इज एन एग्जॉस्टिव एंड इट इज एन कंप्लीट? नो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करने के लिए लॉ बनाया गया है. और इसीलिए नेचर जो है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, व्हाट इज द नेचर? इट इज नॉट कंप्लीट एंड इट इज एग्जॉस्ट, इट इज नॉट इवन एग्जॉस्टिव. It is not even exhaustive means what? There are the chances, there are the basically things wherein something new could be added or something new could be introduced or some new rules could be made. Now when we say that it is not complete and exhaustive, then in that case because it only defines and amends a certain part of the law relating to the transfer of property which is already existing. This act does not give any of the new consolidated law. Consolidated law मतलब क्या? अपने आप में पूरी तरीके से ओके लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ये सिर्फ एक ऐसा लॉ है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होने वाले लॉज में कुछ कमियां होगी तो उन कमियों को दूर करता है. But makes it clear that where any case is not covered by the provision of this act, the court are permitted to administer the principles of equity, taking into consideration the English law if its application is suited to the Indian society and its circumstances. क्योंकि ये एक्ट जो है ये तो ब्रिटिशर्स ने पास किया है 1882 में, ठीक है. और यदि मान लीजिए प्रेजेंट में कोर्ट के सामने ऐसा कोई बेसिकली केस आ जाता है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन के अनुसार गवर्न नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस व्हाट द कोर्ट हैव टू डू? इसके पहले हमने देखा कि कोर्ट जो है वो क्या कर देगा?
प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो है उसको अप्लाई करते हुए बेसिकली क्या करेगा, केसेस को डिसाइड करेगा। और जस्टिस इक्विटी का प्रिंसिपल कौन से बेसिस पे, इंडियन सोसाइटी और वहाँ के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए बेसिकली अप्लाई करेगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, what is the object and the scope of this particular act? Now the scope of this particular act is what? This act defines and amends the law relating to transfer of property act by the act of parties. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ को ये गवर्न नहीं करता है। ये किसको गवर्न करता है? इट ओनली गवर्न्स दी it only governs in relation to the transfer which takes place by the act of parties. अब डिफरेंस देखिए, एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब क्या होता है। एक्ट ऑफ पार्टीज दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है बेसिकली देखा जाए तो हम जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है हमें, तो एक इंटरवाइवस होती है और एक टेस्टामेंटरी वे से होती है। इंटरवाइवस में क्या होता है? इंटरवाइवस में दो पर्सन अग्री करते हैं और प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होता है दो लोगों के बीच में। ये कोई भी दो लोग हो सकते हैं। टेस्टामेंटरी में क्या होता है, और ये दोनों भी जो इंटरवाइवस जो होता है ना, इसपे दोनों भी लोग जो हैं ये लिविंग पर्सन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टेस्टामेंटरी में क्या होता है। टेस्टामेंटरी में एक पर्सन जो है विल बना के प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करता है। जब हम कहते हैं कि एक पर्सन विल बना के दूसरे पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, it means the person who is transferring a property, that is to say transferor does not exist, only the transferee is there who is going to get a property. Then in that case, अब ऐसे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है सिर्फ इंटरवाइवर्स बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को कवर करता है। इंटरवाइवर्स ट्रांजेक्शन्स को कवर क्यों करता है? उसके पीछे की वजह ये है कि जो टेस्टामेंटरी प्रॉपर्टी होती है जिसमें बाय वर्चू ऑफ मेकिंग विल वी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी आर गवर्न्ड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड नॉट बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या होना जरूरी है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि और एक चीज है, ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो देखा जाए तो टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट के रिलेशन में प्रॉपर्टी को डील करता है। अब विल में भी क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा ही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में ओनली द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर्स द ट्रांसफर्स व्हिच टेक्स प्लेस इंटरवाइवसली। तो दो लोगों जो हैं वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, तभी जाके प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी। Now let us see, if we take into consideration the entire scheme, then in that case what would happen? अगर हम entire scheme को देखते हैं तो हमें इतना पता चलेगा कि जितने भी sections हैं basically transfer of property act में, उसमें से section 5 से लेके 37, although section 5 to section 37 contains a provision which is applicable to both kind of properties, whether movable or immovable, लेकिन ये एक्ट जो है मेनली डील करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ही। तो एक और बात दिमाग में आती है कि फिर मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा एक्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो टू टाइप्स की होती है, एक होती है मूवेबल और एक होती है इमूवेबल। तो जो मूवेबल बेसिकली प्रॉपर्टी होती है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पाया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को डील करने के लिए वी हैव अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दिस एक्ट कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल। अब बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 37 में भले ही दोनों भी प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है, बट वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करेगा किस चीज से? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में ही। अब दिस एक्ट कंटेन्स अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर। व्हाई वी से दैट इट कंटेन्स अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर? जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं,
या प्रोविजन डाला गया है वो इंडियन सोसाइटी को देख के डाला गया है एंड नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी हमने ऐसे प्रोविजंस ढूंढने या बनाने की कोशिश की है, हमने नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जनरल प्रिंसिपल्स के द्वारा ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाने की कोशिश की है कि वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। बट साथ ही साथ व्हेन वी see that there is a contradiction in the personal law and the uniform law, then in that case the personal law would exist, the personal law would prevail and not the general law. बट कुछ तो प्रोविजन ऐसे होंगे जो सारे कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, तो ऐसे ही बेसिकली जनरल प्रोविजंस जो हैं वो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में डाले हुए हैं। बट अगेन मुस्लिम्स में हिबा का जो प्रोविजन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वी हैव डेल्ट विद मुस्लिम लॉ, उसमें वी हैव सीन कि जो मुस्लिम प्रोविजन के अंतर्गत हिबा हिबा लिवाज, हिबा शर्त लिवाज, इस तरीके से गिफ्ट देने का प्रोविजन बताया गया है। व्हेन द transfer of property by way of gift is already given under the Transfer of Property Act and it is simultaneously also been governed by the personal law. Then in that case क्या prevail over होगा वहाँ पे, मुस्लिम लॉ या पर्सनल लॉ प्रिवेल होगा। तो अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रांसफर्स होते हैं हिबा के फॉर्म में मुस्लिम्स के द्वारा एक मुस्लिम से दूसरे मुस्लिम को, देन इन दैट केस वहाँ पे मुस्लिम लॉ ही प्रिवेल होगा and not the provision of the Transfer of Property Act. अब देखो, an act which contains a general principle of transfer does not affect the transfer by Muslims even if it is against any of the general provisions. Here only the Muslim law will prevail. Example दिया हुआ है, gift made by the Muslims are governed by hiba. Now this particular act does not define any existing rules of transfer, right? But it also provides for amendment and modification of some of them so as to make them suitable in the socio-economic condition of India. Now we'll be seeing two things, like जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पूरा पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सेल के द्वारा होता है, गिफ्ट के द्वारा होता है, मॉर्गेज के द्वारा होता है, लीज के द्वारा होता है, कैसे होता है, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पार्टीज के होते हैं। तो इसे हमें ये पता जरूर चलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जो कि ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो ऑलरेडी अगर मान लीजिए किसी प्रोविजनल किसी पर्सनल लॉ में कोई प्रोविजन दिया गया है तो उसमें भी अमेंडमेंट लाने का या मॉडिफिकेशन लाने का ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन द स्कोप इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। लेकिन यदि मान लीजिए ऑलरेडी प्रोविजन पर्सनल लॉ में दिया गया है, देन इन दैट केस ओनली द पर्सनल लॉ वुड अप्लाई एंड नॉट द जनरल लॉ। नाउ इट इज अ पैरेलल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया कि पर्सनल लॉ में भी प्रोविजन है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रोविजन है। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए हम पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो हम पर्टिकुलर रिलीजन वाला लॉ जो है अपने ऊपर डिक्लेयर करवा के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब निकला कि हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक पैरेलल लॉ के रूप में है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ जिसके द्वारा हम टेस्टामेंटरी या इंटेस्टेड ट्रांसफर कर सकते हैं उसको एक तरीके से ऑन द अदर हैंड पैरेलली हमारे पास भी यूनिफॉर्म लॉ भी एप्लीकेबल है। Now the act cannot be applied to affect and change the nature of the property itself. अब because I have already said कि transfer of property act जो है it deals only specifically with the transfer of immovable property. It means that it is not going to affect or change the nature of the property itself. Property once been declared to be immovable cannot be for the sake of this particular act be declared to be a movable property, nor any movable property can be for the purpose of or for the sake of this particular act to be declared as a immovable property. So this act does not make or does not does not change in the nature of the property itself. It specifically deals only with the immovable property. Now originally it was not made applicable to whole of India. अगर हम बात करते हैं applicability of transfer of property की, तो ये पहले बार में जो है 1882 में होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई नहीं किया गया था।
होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि वहाँ पे उस वक्त प्रोविंशियल स्टेट्स का कंसेप्ट था और स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली जो है वो एग्जम्प्ट रखे गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट के एप्लीकेशन से। बट प्रेजेंट में बॉम्बे ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दिल्ली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेरेशन निकाल के, बट पंजाब जो है उसने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया है। अब जब हम कहते हैं कि इस पंजाब ने इसको अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर द स्टेट ऑफ पंजाब। लेकिन सपोज पंजाब कोर्ट के सामने अगर कोई मैटर आता है और वो मैटर ऐसा है जिसको हमें बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ भी प्रोविजन अप्लाई करने के लिए नहीं है या पर्सनल लॉ हमारे पास में नहीं है, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? वहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे मैटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस वुड बेसिकली be depend upon the fact and the circumstances of the case, right? So if we take into consideration the if we take into consideration the entire provision, what we came to know is we came to know that this is a particular Transfer of Property Act which came into existence in 1882. It came into existence by the it was brought into effect by the British Parliament. This particular act came into effect on 17 Feb 1882. This act is basically made with a purpose to amend the law relating to transfer of property by the act of the parties. Now, prior to 1882, the transfer of immovable property in India was governed by the principles of English law and the equity, and in absence of any of the statutory provision. Yani that is to say, if there is a statutory provision, it would be governed by that particular statutory provision. If there is no statutory provision, it would not be governed by any statutory provision, but by the virtue of the principles of justice, equity and good conscience. Now, what was the actually concept of justice, equity and good conscience? On इसके लिए own notion of justice and fair play कोर्ट अप्लाई करते थे on the basis of circumstances and the situations. इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने के लिए लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था। ये जो लॉ कमीशन था इसने अपनी तरफ से एक सब्सटेंटिव लॉ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नाम पे लाने की कोशिश की, और देखा जाए तो जो थर्ड लॉ कमीशन था उसने नंबर ऑफ रिविजन्स किए, 7-8 बार रिविजन्स किए, एंड 7 बार रिविजन करने के बाद में दिस पर्टिकुलर substantive law actually देखा जाए तो came into existence. Why I am saying it is a substantive law? For the reason laws are of two types, one is substantive and the another is procedural. Substantive law जो है it only deals with the rights and obligations of the parties. Substantive law always define the rights and the duties of the parties. And what procedural law defines? Procedural law defines the procedure by virtue of which we can take the substantive rights. So it is nothing but a substantive law. It only deals with the rights and obligations, rights and duties of the parties under this particular act. Now, the nature of this particular act is what? This act is not complete in itself, nor it is an exhaustive one. Why we say it is not complete and exhaustive? It is not complete and exhaustive because this particular act only defines and amends certain parts of the law where relating to the transfer of property which is already in existence. This act does not give any of new consolidated law. जैसे suppose for example के लिए देखो होल्डिंग एंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, बट होल्डिंग एंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त में हमको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है पार्टीज की उनको पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए भले ही कंसोलिडेटिंग एक्ट कौन सा एक्ट हो गया? द होल्डिंग एंड सीलिंग एक्ट हो गया, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है, जो कि अपने आप में हमेशा बढ़ते रहते हैं, देन इन दैट केस हम ऐसा कहेंगे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंसोलिडेटेड एक्ट होता है उसमें किसी अमेंड प्रोविजन को अमेंड करना है, डिफाइन करना है, उसके लिए मददगार है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बता रहा है, बट सिंपली ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज बता रहा है। वो पार्टी जो कि किसी न किसी तरीके से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो कि इमूवेबल नेचर की है ट्रांसफर करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मे बी अ लिविंग पर्सन, ठीक है, और मे बी अ ज्यूरिक पर्सन।
Now this act does not give any of the new consolidated law, but it makes it clear that where any case is not covered by the provision of the act, the court are permitted to administer the principles of equity, taking into consideration the English law if its application is suited to the Indian society and its circumstances. Now, if we take into consideration again the object and the scope of this act, the scope is this act defines and amends the law relating to the transfer of property by the act of parties and does not cover the transfer of property by operation of law. The transfer of property by the act of parties may be inter vivus and testamentary. जब हम बात करते हैं inter vivus, अगर inter vivus transaction हो रही है तो उसमें दो living person एग्री होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में ये जब दो लिविंग पर्सन एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आपस में ट्रांसफर करते हैं, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज कवर्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन यदि एक्ट ऑफ पार्टीज में क्योंकि टेस्टामेंटरी या बाय मेकिंग विल भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, बट जब हम टेस्टामेंटरी या बाय मेकिंग विल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कवर नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। वो किस में कवर होगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पूरे सेक्शंस में से सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37 जो है, ये क्योंकि दोनों भी तरीके के प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, मूवेबल एंड इमूवेबल, बट ये एक्ट जो है स्पेसिफिकली अप्लाई करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही। एन एक्ट ये कंटेन करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर, बट ये पर्टिकुलर एक्ट जो है पर्सनल लॉ में यदि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को लेके स्पेशल प्रोविजंस दिए गए होंगे तो उनको एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुस्लिम्स के द्वारा किया जाने वाला हिबा के रूप में ट्रांसफर वुड नॉट बी कवर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ ही अप्लाई होगा। ये एक्ट जो है ये डिफाइन नहीं करता है किसी भी एग्जिस्टिंग रूल्स को ऑफ ट्रांसफर, बट ये अमेंड कर, ये सिर्फ उतना डिफाइन ही नहीं करता है बल्कि साथ ही साथ ये अमेंड भी करता है और मॉडिफाई भी करता है कुछ रूल्स को, ताकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया को सूट हो सके। ये अपने आप में एक पैरेलल लॉ है, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ के साथ साथ चलता है। एग्जिस्टिंग लॉज जो कि टेस्टामेंटरी एंड इंटेस्टेड ट्रांसफर्स के साथ डील करते हैं। ये एक्ट जो है ये अप्लाइड नहीं किया जा सकता और बेसिकली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी प्रॉपर्टी के नेचर को चेंज करने के लिए या उसको अफेक्ट करने के लिए इस एक्ट को अप्लाई करेंगे। ये एक्ट कभी भी अप्लाई नहीं होगा किसी भी प्रॉपर्टी के नेचर को चेंज करने के लिए या अफेक्ट करने के लिए। ओरिजिनली देखा जब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की, देन इन दैट केस ओरिजिनली इट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली जो है इसको एप्लीकेशन से एग्जाम्प्ट रखे गए थे। प्रेजेंटली इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब। बॉम्बे और दिल्ली में अब ये एप्लीकेबल होता है, बट कोर्ट के सामने जब भी कोई पंजाब कोर्ट के सामने यदि कोई ऐसे केस आ जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, देन इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस हम देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, एंड if any